ادب اور احترام کے ساتھ خدا کے حضور میں کلام خدا کی نصیحت کے مطابق جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ بزرگ جو اچھا انتظام کرنا جانتے ہیں، بالخصوص جو خدا کے کلام کی خدمت، اس کے کلام کی تعلیم دیتے ہیں، وہ دو چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ تو میں خدا کے حضور میں بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کے لیے خدا کے خادم خداوندوں کو آپ کی زوردار تعریف اور خدا کے سلام کی خدمت کرتا ہوں۔ بہت شکریہ خدا آپ سب کو ہمیشہ اپنی برکات سے پہنچے خوش رکھے۔ خدا کے لوگ آج ہم خدا کی شکر گزاری کے لیے، اس کی عبادت کے لیے خوشی تیاری کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوشائن بات ہے۔ خداوند ہمیں بار بار اس موقع فراہم کر رہا ہے جن میں میں اور آپ شامل ہو کر وہ برکات کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو خدا نے بڑے عالم سے میرے اور آپ کے لیے بنا رکھے ہیں اور اپنے حضور محفوظ رکھے ہیں تاکہ آپ کو وقت پر مہیا کریں۔ آج کا کلام جو حوالہ پڑھا گیا، بیٹی نے بڑی صفائی کے ساتھ بڑے تلفظ سے اس حوالہ کو پڑھا آپ کے سامنے، اور آپ نے سن لیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس حوالہ کے مطابق، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارا موضوع ہے ہم اپنے نہیں۔ ہم کیا نہیں؟ اپنے نہیں، بلکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، اور ہم اس کے ہیں جس نے ہمیں قیمت سے خریدا۔ یہ سارا ٹاپک نہیں، لیکن ہم اپنے نہیں، یہ ٹاپک یہاں تک ہے۔ لیکن میں نے آیت پوری کو آپ کے سامنے پڑھی، اس لیے ایسی تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ایماندار ہونے کے ناطے میرے لیے اور آپ کے لیے بات جاننا سخت ضروری ہے کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہوں۔ ایک سوال سے شروع کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی اور موت میں آپ کی جو واحد تصدی ہے وہ کس بات میں ہے یا کیا ہے؟ زندگی اور موت میں دیکھیں، زندگی اور موت کے دونوں ہیں، لیکن میری اور آپ کی اور بہت سی ایماندار آپ کی تسکین کس میں ہے؟ کیا ہے؟ کیا آپ کی امید ہے؟ کیا آپ کا یقین ہے؟ کیا آپ کی تسلی ہے؟ جب اس کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں تو جواب اس کا اس طرح سے ہے کہ میرا بدن اور روح دونوں ہی جو ہیں، بدن اور روح، زندگی اور موت دونوں میرے اپنے نہیں ہیں۔ کس بات میں تسکین ہونی چاہیے، تسلی ہونی چاہیے کہ ہمارا بدن، روح اور زندگی اور موت دونوں میں میرے اپنے نہیں، یہ دونوں ہی میرے نہیں ہیں۔ چونکہ آیت ہم نے پڑھی تو اگر ہم مناسب سمجھتے دیکھ لیں اس آیت کو کہ پولس نے کیا فرمایا۔ 7ویں اور 8ویں آیت کو اتفاق میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ لکھا ہے کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے، نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ آیت واضح ہے۔ تو اس لیے جو اس سے سبق ہمیں ملتا ہے میری چیزوں وہ یہی ہے کہ میرا بدن ملکیت ہے، ان پر خدا کا اختیار ہے۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ حوالہ نکالیے گا پہلا کرنتھس کی کلیسیا کے نام لکھا گیا، پولس رسول کا خط 6واں باب، میرے ساتھ نکالیے 19ویں آیت کو دیکھیں اس کے ساتھ اس حوالہ کی سپورٹ کے لیے۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا؟ پولس نے 19 آیت میں 6 باب کی 19 آیت میں فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ آمین۔ کیا لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है? ये सवाल है, ये सवाल है। आप देखिए अपनी बाइबल मुक़द्दस में ये सवाल है, सवाल निशान से है। ये आपसे सवाल किया जाता है। पौलुस ने सवाल किया कुरिन्थस की कलीसिया से, जब खत लिखा तो उन्होंने ये सवाल की सूरत में उनके सामने मैसेज छोड़ा। इस पर गौर करें और फिर आगे लिखा है, जब हम उसकी 20वीं आयत को देखें या 19 आयत को आगे रखते हैं, जारी करते हैं, तो लिखा तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। हमें क्या करना है? हमें ये सोचना है, गौर करना है कि हम जब अपने नहीं हैं तो फिर हम किसके हैं? देखिए, जिसकी जो मलकियत होती है उसी को उस पर राइट हक होता है कि वो उसी के लिए हो और उसका इस्तेमाल खर्च उसी के लिए हो। मालिक की जो चीजें हैं वो अगर किसी और के इस्तेमाल में आ जाएंगी या जो उनका मुख्तार था वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या होता है? मालिक की मुखालफत होती है, उसकी नाफरमानी होती है, उसके खिलाफ बगावत होती है, ये बागियाना रवैया होता है। तो इसलिए पौलुस ने वाज़ेह किया है ईमानदारों पर कि आप अपने नहीं हैं, जो ये समझकर दुनिया में दंदनाते फिरते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहते हैं वो करते हैं। तो याद रखिए, ये ख्याल, ये सोच, ये सब कुछ जो है आपकी जिंदगी का ये हिस्सा बन चुका है। ये नामुनासिब बात है। इस बात पर सोचना है कि आप जो सेहतमंद हैं, आप जो जोरावर हैं, आप जो खूबसूरत हैं, आप जो जवान हैं, आप जो बड़े दानिशमंद हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत तालीम याफ्ता हैं, बहुत होनहार हैं, आप बहुत ही सलाहियत रखते हैं, तो ये मत सोचिए कि यह आपकी अपनी चीजें हैं, ये आपका अपना सब कुछ है, ये आपका नहीं है कुछ भी। आपकी रूह की है, आप जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है, तो फिर सब कुछ उसका है। तो मेरे से इस पर फख्र करने की हमें जरूरत नहीं है, ना हमें खुदा की नाफरमानी करने की जरूरत है, ना हमें उसके खिलाफ कुछ करने की जरूरत है, ना इस बदन को जो उसका मक़दस है जिसमें रूह कुद्स बसा हुआ है। पाक रूह का क्या है? मस्कन है, मक़दस है, और इसमें पाक रूह बसा हुआ है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत होता है, इसकी ख्वाहिशात जो गलत है वो हासिल करने के लिए इंसान बड़ा बदन, जुनून, जिंदगी और मौत, ये सब किसके लिए है? बल्कि ये मेरे वफादार बावफा खुदा यानी निजात दहिंदा के लिए है। यानी खुदावंद यीशु मसीह की मलकियत है, किसी और की नहीं है। हाँ, हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, इस जहां का खुदा भी है, इस जहां का खुदा भी है जो इस दुनिया पर हुक्मरानी करता है। बहुतों को इसका इल्म नहीं होगा, लेकिन बताना चाहता हूं कि इस जहां का खुदा भी है जो बदमाशों को, जो हर किस्म के करप्ट लोगों को, बुराई करने वालों को, जायज़ और नाजायज़ तरीके से रुपया पैसा कमाने वालों को अमीर बना देता है, दौलतमंद बना देता है। जो हर किस्म की बुराई करने वाले लोग होते हैं वो ईमानदार लोगों को अपने से फर्क नजर आते हैं, और कई दफा लोग इस पर कोसते भी अपने आप को कोसते हैं कि ऐसा क्यों है। लेकिन याद रखिए, आप जिसकी इबादत करेंगे, जिसकी परस्तिश करेंगे, वो ही आपको सरबलंद करता है। और बिलखसूस इस दुनिया में, इस बदन में रहते हुए, तो इस जहां का खुदा जो है उसने तो यीशु मसीह को भी आपको पता है कि ना छोड़ा, उसको भी उसने आसमानी पर गिराने और बुलाने की कोशिश की। जब उसने कहा कि ये पहाड़ पर ये जो कुछ चढ़ और देख और जो कुछ भी है ये सब मैं तुझे दे दूंगा, दुनिया की चीजें, तो यीशु मसीह ने उस आजमाइश पर फतह पाई। तो आज मैं और आप भी इस तरह की आजमाइशों का शिकार होते हैं। हम रुपए पैसे के हसूल के लिए, हम दौलत के हसूल के लिए, लोगों से मुनफरद जिंदगी गुजारने के लिए, आलीशान जिंदगी गुजारने के लिए हम हर तरह की बुराई का शिकार हो जाते हैं। हम गुमराह हो जाते हैं, गुरगश्ता हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये सब कुछ आरज़ी है और ये इस दुनिया का है। ये वफादार बावफा खुदा निजात दहिंदा के लिए, यीशु मसीह के लिए हैं, ये उसकी मलकियत है। बस ये जो तीसरा बाब कुरिन्थियों का निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों तीसरा बाब, तो उसकी जब आप 23वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस रसूल ने बड़े वाज़ेह लिखा है
तीसरे बाब के 23वें आयत में हम पढ़ें, लिखा है, उन्होंने फरमाया सब तुम्हारी हैं। यानी अगर ऊपर से पढ़े 22वें आयत से तो फिर वाज़ेह होगा, खा पौलुस हो, खा अपुल्लोस, खा कैफा, खा दुनिया, खा जिंदगी, खा मौत, खा हाल की चीजें, खा इस्तकबाल की चीजें, सब तुम्हारी हैं और तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। यानी जो कुछ भी है, पौलुस ने वाज़ेह किया है कि जो कुछ भी है, पौलुस हो, अपुल्लोस हो, पतरस हो, कैफा से कहते हैं, वो हो, जिंदगी हो या मौत हो, ये सब क्या है, खा हाल की चीजें, खा मुस्तकबिल की, सब तुम्हारी है। तो तुम किसके हो? तुम मसीह के हो, तुम मसीह के हो और मसीह खुदा का है। तो मेरे अजीजों, जब ये सब कुछ ही मेरा और आपका नहीं है, तो हमें याद रखना है कि जिंदगी में ये चीजें मेरे लिए और आपके लिए फंदा जरूर बन सकती हैं, खुदा से दूरी का बायस जरूर बन सकती हैं, लेकिन ये मेरे लिए और आप सबके लिए ये जिंदगी का बायस नहीं हो सकती। तो कलाम खुदा बड़े वाज़ेह और साफ फरमाता है कि क्या करना है। जिसने अपने कीमती खून से मुझे और आपको खरीद लिया और अलग किया, दुनिया में से अलग किया, वो चाहता है कि हम क्या करें, हम उसकी फरमाबरदारी करें, हम उसके खौफ में रहें, उसकी इबादत करें, उससे डरते और उसके अहकाम का लिहाज करें, उसकी इलाही मर्जी की फरमाबरदारी करें। पहला पत्रस पहले बाब की 18वीं 19वीं आयत में लिखा है। जब हम ये आयत पढ़ते हैं तो पत्रस रसूल ने भी अपने ईमानदार बहन भाइयों को अपने इनको लिखा। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 18वीं आयत से 19वीं आयत था। तो यहाँ पर भी पत्रस रसूल ने भी इसे बड़ा वाज़ेह अल्फाज में बयान किया है। हम देख सकते हैं कि हम जब अपने नहीं हैं तो मुख्तलिफ हवालाजात इसकी किस तरह से हमारी रहनुमाई करते हैं समझने के लिए, ताकि हम इन पर अमल करें। पहला पत्रस उसके 18वें बाब की 19वीं पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत दोनों पढ़ें। हाँ जी, पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत चलिए पढ़ लें। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेआयब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से, यानी और कोई चीज नहीं, मेरी और आपकी मखलसी, मेरी और आपकी रिहाई, मेरी और आपकी जिंदगी का निजात का जो बंदोबस्त किया गया, ये किसी और चीज से नहीं, बल्कि ये मसीह यीशु ने अपने कीमती खून के वजह हमें अदा की। और हमें कलाम खुदा में से ये बातें सीखने को मिलती है। खुदा के अदल और मोहब्बत के तकाजा को उसने पूरा किया। चूंकि जानवरों, बैलों, बछड़ों की जो कुर्बानियां थी, उनका ज़िबा किए जाना, उनका कुर्बान किए जाना, बड़ी सब कौम ने सालों साल ये सिलसिला जारी रखा, लेकिन हर साल में फिर से जरूरत पड़ती कि वो फिर से जानवर अगले साल कुर्बान करते ताकि उससे बखलसी और निजात हासिल कर। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को मसीह यीशु को मेरे और आपके लिए दुनिया में इसलिए भेजा कि वो मेरी और आपकी जगह पर मसलूब होकर हमें तमाम उन बुराइयों से, गुनाह के चुंगल से, उस मौत से जो अबदी मौत है, छुड़ाया और उसने अपना कीमती खून बहा दिया ताकि मैं और आप आजाद हों। खुदा के अदल को, तकासे को उसने पूरा किया और मुझे और आपको शैतान के इख्तियार से छुड़ा लिया, क्योंकि शैतान ने हमें खरीद लिया था। और अभी भी आप गौर कर सकते हैं कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो शैतान के शिकंजे में फंसे हुए हैं, अभी तक भी शैतान के शिकंजे में है, उसके कब्जा में है। लेकिन कलाम ये कहता है कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के कीमती खून के वजह से हमें बचा लिया। और मसीह ने क्या किया, अपने कीमती खून से खुदा के अदल और मोहब्बत के तकाजे को भी पूरा किया। और फिर उसने क्या किया, शैतान के शिकंजे से, इख्तियार से मुझे और आपको छुड़ा लिया, ताकि हम किसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। हम अपने नहीं,
कीमत से खरीदे गए हैं। तो जिसने कीमत अदा की है, हमें उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अजीजों, ये बात मुश्किल होगी समझने में, लेकिन कोशिश कीजिए कि कलाम क्या फरमाता है, आपकी और मेरी बहाई और बेहतरी के लिए फरमाता है। क्योंकि ऐसी बातें कभी कभी समझने में मुश्किल आ जाती है, क्योंकि अमली जिंदगी का आगाज होता है यहाँ से। अमली जिंदगी शुरू करने में मुश्किल आ जाती है, बहुत सी रुकावटें सामने हाजिर हो जाती हैं, और दुश्मन जिस इब्लीस का जिक्र हुआ को उसके इख्तियार से छुड़ा लिया, वो इब्लीस शरीर दुश्मन शैतान फिर से कोशिश करता है कि वो उन लोगों को जो डिसीजन लेते हैं कि अब हम दुनिया में नहीं, दुनिया की बुराई या बदन की ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं जिंदगी गुजारेंगे, वो फिर आज सामने खड़ा होता है, यहाँ से गाना मूसी करना शुरू करता है, और वो फिर हमारे दिमाग पर कब्जा करता है, और फिर वो अमली तौर पर अपने ही कंट्रोल में लेकर वो सब कुछ करवा लेता है जो उसके प्रोग्राम में शामिल होता है। कलाम को सुनने के बावजूद भूल जाते हैं, सुने के जरूर वक्ती तौर पर उसका फैसला कर लेंगे, लेकिन जब थोड़ा वक्त गुजरता है तो फिर कलाम जो है वो छिड़ जाता है। कलाम हमारी जिंदगी, हमारे ज़हन से बिल्कुल मिट जाता है, और फिर हम दुनिया ही और दुनिया के ख्वाबों ख्यालों में मसरूफ हो जाते हैं। अजीज भाई और बहनों, पहला यूहन्ना 3 बाब उसके 8वीं आयत के मुताबिक लिखा है, इस कदर अगर हम ये देख लीजिए सवाल को, पहला यूहन्ना 6 को देखिए, पहला यूहन्ना और उसके 3 बाब की 8वीं आयत को हम देखें तो यहाँ यूहन्ना रसूल ने भी वाज़ेह इस मज़मून की सपोर्ट की है, इस टॉपिक को सपोर्ट किया है। उसने भी फरमाया 3 बाब की 8वीं आयत में, जो शख्स गुनाह करता है वो जी। इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। जी। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। इब्लीस के कामों को क्या करे? मिटाए। जो शख्स गुनाह करता है वो किससे है? इब्लीस से, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा, और खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि उसके कामों को मिटाए। याद रखिए, खुदा के बेटे का आने का मकसद मेरी और आपकी रिश्वत के पैसे नहीं था। हमने कोई खुदा को रिश्वत ना दी, हम इस लायक ना थे उसको रिश्वत देते या उसको मजबूर करते कि वो अपने बेटे को मेरी और आपकी जगह भेजता और वो मसलूब होता, बल्कि उसने क्या किया? हम पर रहम किया, फजल किया, उसका ग्रेस आप पर हुआ। स्टूडेंट जो है, जो स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर आगे हायर डिग्री के लिए फिर यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करते हैं, वो समझते हैं कभी कभी किसी सब्जेक्ट में, बाकी सब्जेक्ट में आपके नंबर अच्छे हो, किसी एक में थोड़े कम हो तो वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, वो ऐड करके पास कर देते हैं। वो पास कर देते हैं कि इसने इतनी मेहनत की, चल एक पेपर में अगर कमी है तो 2, 3, 4 नंबरों की बात नहीं, वो उसको क्लियर कर देते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आपने वो उसका पूरा म्यार तो पूरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपका क्या हो गया? रहम हो गया, फजल हो गया, आपको पास कर दिया। तो बहन ही मुझ पर और आप पर खुदा का ये फजल हुआ, उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। हम जब बिल्कुल गुनाहों में मुर्दा थे, अपने कामों अपनी सोचों के बायस गुनाह में मर रहे थे, मौत के मुंह में जा चुके थे, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और उसने आकर सब कुछ वो किया जो खुदा के मंसूबा में शामिल था। उसके तकाज़ों और मोहब्बत को उसने पूरा किया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी इस पर ईमान लाए हिलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अजीजों, याद रखिए, जिसने मेरे और आपके लिए ये काम किया, यानी मेरे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर, कलाम में लिखा है कि आपके सर का एक बाल भी नहीं गिर सकता है उसकी मर्जी के बगैर, क्योंकि वो मेरा और आपका इख्तियार, आप पर इख्तियार का वो मालिक है, हम उसकी मलकियत है। तो कलाम खुदा में बहुत से और भी हवाला हैं, लेकिन इतने हवाला पढ़ना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कलाम खुदा में लिखा है, बल्कि सब चीजें मिलकर मेरी निजात के लिए क्या करती हैं? काम करती हैं। सब चीजें मिलकर मेरी निजात के लिए काम करती हैं, और फिर इसलिए वो अपने पाक के वसीला से मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी का यकीन
दिलाता है अपने पाक रूह के वसीला से। हमें हमेशा की जिंदगी का यकीन दिलाता है कि आप हमेशा की जिंदगी रखते हैं, बशर्ते कि आप यीशु मसीह के कफारा पर, उसकी मौत पर, उसके जी उठने पर और वापस आने पर ईमान रखते हैं, तो फिर ये आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। अजीज भाई और बहनों, इसलिए ये इस पर अमल करना या इस पर गौर करना, यकीन से कबूल करना असल जरूरी है। और मुझे इस काबिल बनाता है कि आपसे अपनी खुशी और रजामंदी से खुदाम के लिए जिंदगी गुजारना मुझे और आपको इससे सबक में यही मिलता है कि हमें खुदाम के लिए जिंदगी गुजारने की, दुनिया के लिए नहीं। हम ठीक है, हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, दुनिया का हम बहुत कुछ सोचते हैं, अजीज दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे अपने बच्चे होते हैं, ये सब दुनिया ही है और हम इनके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन ये सब कुछ करना भी, ये भी नहीं छोड़ना है। मैं अक्सर ये बताता हूँ कि ये बात सोचें कि बच्चे हैं, जिम्मेदारी को छोड़ें और तारक दुनिया बन जाए, जाकर किसी मैदान में, जंगल में जाकर, पहाड़ पर जाकर बैठ जाए। नहीं, अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी देखना, मुआशरे में भी रहना है और फिर क्या करना है कि अपनी खुशी और रजामंदी से उसके लिए जिंदगी गुजारना है। यानी इन तमाम हालात में रहकर आपने वो करना है जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है। यानी ये जानकर कि मैं अपना नहीं हूं, मेरी तो कीमत अदा की गई, मैं तो खरीदा हुआ हूं। आज सोचिए, जिसको खरीद लिया जाता है, प्राणियात को देखें, बड़ी इस्राएल कौम भी देखें, तो गुलाम खरीदा जाया करते थे, पैसे देके गुलाम बनाए जाते थे, खरीदे जाते थे। तो क्या वो जो गुलाम होता था, जो खरीदा जाता था, कभी उसने अपनी मर्जी की? हरगिज़ नहीं। गुलाम की अपनी जो खरीदा जाता है उसकी अपनी मर्जी नहीं होती है, बल्कि किसकी मर्जी होती है? उसके मालिक की, जिसने उसे खरीदा है। तो आप ये समझिए कि आपको गुनाह की गुलामी से आजादी मिली और आप किसके हैं? आप रास्तबाजी के गुलाम हैं, आप यीशु मसीह के गुलाम हैं। वो गुलाम नहीं जो गुनाह की गुलामी का हाल होता है, वो हालत नहीं जो गुनाह में रहने से, गुनाह की गुलामी से जब आप आजाद हुए तो आप वहां मौत की हालत में थे, नाउमीदी की हालत में थे। लेकिन जब उससे निकाले गए रास्तबाजी और पाकीज़गी, खुदा की बादशाही के फजल बने, तो फिर आप उसके गुलाम मुहैया की है। जिंदा उम्मीद उसने अपने लिए पैदा की है, आसमान की बादशाही उसने अपने लिए तैयार की है। वो फरमाता है कि मैं गाता हूं जाकर तुम्हारे लिए मेरे साथ रहें। आप चाहते हैं कि आप उसकी अपनी चीजों को अपनी मिरास पर हासिल करें, उसके बेटे और बेटियां बने, तो फिर जरूरी ये है कि हमें ये इस बात को कभी नहीं भुलाना है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम उसी के हैं और उसकी मलकियत है। जिसकी मलकियत है उसका हम पर इख्तियार है कि वहां से शब रोज अपनी मर्जी पूरी करवाए, हर रोज अपनी मर्जी पूरी करवाए, हर रोज अपनी मर्जी के मुताबिक हमसे काम ले और हम उसके लिए इस्तेमाल और खर्च होते रहें। हम उसकी इबादत करें या हम कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी हम करें, कलाम में लिखा है कि खुदा के लिए, ये जानकर कि हम खुदा के लिए करते हैं, ना कि किसी इंसान के लिए, ना अपनी जात के लिए, बल्कि सब जब हम खुदा के हैं तो फिर हमें जो कुछ भी करना खुदा के लिए करना, हमें अपने लिए कुछ नहीं करना, बाजार अपने लिए करते हैं, लेकिन हम हैं किसके? खुदा के। तो जब खुदा के तो फिर सब कुछ उसी के लिए हम करते हैं। खुदा मुझे और आपको ये फजल अदा करें कि आप महसूस करें, आप इस चीज़ को जरूर अपने ज़हन नशीन करने की कोशिश करें कि खुदा का कलाम जो कुछ हमें फरमाता है वो मेरे लिए और आप सबके लिए यकसा है, और एक ही इसमें मेरे लिए और आप सबके लिए मैसेज है, सबक है, वो ये कि हम अपने नहीं, हम कीमत से खरीदे गए हैं। तो जिसने कीमत से खरीदा है उसका जलाल अपने कामों से, अपनी बातों से, अपनी और फेर से जाहिर करना है। हम कभी कभी ऐसा होता है, हम समझ रहे होते हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, जो बात कर रहा हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें हम बहुत कुछ गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि शरीर ने हमारी अकल पर पर्दा डाल देता है और हमें इम्तियाज करना नहीं आता, तो इसलिए भी हम गलती कर जाते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि हर बात में हमें उसका जलाल जाहिर करना है, ज़बान पर कंट्रोल रखना है, इन कानों पर कंट्रोल रखना है, इन आंखों पर कंट्रोल रखना है, अपने कौल फेल पर कंट्रोल रखना है, तब हम उसकी मर्जी पूरी करेंगे और उसका जलाल जाहिर करने का वसीला बनेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं और इस ख्याल के साथ कि हम अपने नहीं, हम कीमत से खरीदे हुए हैं, आंखें बंद करेंगे और दुआ में वक्त गुजारेंगे। ऐसा